Hello, students. This is Dr. Shubhais here. So, how are you doing today? You can use the chat to answer. That's good to hear, man. That's good to hear. Okay, so we have this chapter number 4, that we need to revise today. It's the Aryan classes that we are going through, right? So, don't have much time to, talk about anything else, but we would be straight down to the business, and we will try to cover as much as possible all the important things of this chapter, right? So, structure of cell membrane, you all know that it's a lipid bilayer, basically large number of proteins present. It can allow the passage of many materials in and out of it, out of the cell. So that's how it goes. You know all these facts. So, what are the ways that are used for the transport across the cell membrane? Going to be the topic of the day. First of all is the simple diffusion. That's the random molecular movement of substances, right, molecule by molecule through the intermolecular spaces in the membrane. Higher the temperature, faster the movement, right? So there are certain other factors which are going to uh, affect the diffusion rate. Of course, they are. So the main thing about the simple diffusion is that the simple diffusion is totally dependent on the it's totally dependent on the net diffusion, right? So the main thing in the simple diffusion is net diffusion. So net rate of diffusion is going to determine that at what rate the diffusion was being carried out, right? So the more the gradient difference, more will be the rate of diffusion, right? So that is for the simple diffusion. The other thing is the facilitated diffusion. Like, so in simple diffusion, there is no outward source of energy is required. There is no external source of energy is required. All what is required is the movement of the molecules, right? And the kinetic energy of the molecules would be required to cause the diffusion. In facilitated diffusion, yes, there is still no external force required. The kinetic energy of the molecules would be used, or ions would be used, but there would be uh, an addition of carrier proteins, right? So these carrier proteins, if they are not there, then we can call it simple diffusion. When the carrier proteins are there and there is no external source of energy other than the kinetic energy of the molecules itself, so then it means that this is the facilitated diffusion. So when we have facilitated diffusion, we have carrier proteins. So we know that lipid soluble substances, they are very easy to pass through the cell membrane, right? Because substances like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, alcohols, they are very easy to pass through they are at much more ease to pass through the cell membrane as compared to water soluble substances, right? So, and the books have written that uh, the oxygen, the carbon dioxide, the alcohols, they pass through the lipid bilayer as if it did not exist. Okay, so coming to the water soluble things, or whatever the water soluble particles or substances, then water passes through aquaporins that selectively permit rapid passage of water through the membrane, right? Now, aquaporins, there are 13 different types of aquaporins. Now, aquaporins are basically small water channels which are present in different tissues of the body. The most famous ones are in the kidney, in the renal tubules, right? And those are aquaporins too, right? But apart from that aquaporins too, there are
12 other types of aquaporins, right? So the total amount of water, they are so efficient, these aquaporins, that the total amount of water that can diffuse in each direction through the RBC membrane during each second, I re-emphasize, during each second is about 100 times as great as its volume. So here you can see that when it comes to the water channels of the cell membrane, so they are very, very efficient. They can, as we can see, that they can diffuse in each direction through the RBC membrane in 1 second, about 100 times as great as its volume, right? So that's the diffusion. Now, diffusion through protein pores and channels, selective permeability and gating of channels. There are two things. One is that when we talk about the channels, right, which are responsible for the diffusion, right, and we talk about actually two things. One, the selective permeability, and the other thing is gating of the channels, right? So we will take them one by one. That what do we mean by the selective permeability of a channel or of a pore, right? And what is the gating of a channel? So pores are basically composed of integral cell membrane proteins. We all know that. Now, the diameter of a pore or the electrical charges on that pore, inside that pore rather, would provide selectivity that permits only certain molecules to pass. Okay? Aquaporins or water channels permit rapid passage of water through cell membranes but exclude other molecules. Now, as we were taking the example of aquaporins, so the aquaporins, which are the channels for the water transfer or the water diffusion, so they would permit rapid passage of water through cell membranes but exclude other molecules. So they won't allow other molecules to go. So that is where the selectivity of that pore comes in, because these aquaporins, they are not allowing any other substance, any other ion, any other molecule to pass through, but they are only allowing the water molecules to pass through, right? Okay. Now, protein channels, they have got two important characteristics, right? One, that as we have just talked about, that they are often selectively permeable to certain substances. Let me check what somebody has to say over here. Okay, walaikum assalam to everybody, but trust me, we don't have time for that today, right? So we will just gallop along. Okay, so the selectivity, they are often, as I've just told you, that the protein channels, they have got two major characteristics. One, they are often selectively permeable to certain substances. Second, they can be opened or closed by the gates that are regulated by electrical signals, right? When their gates are regulated by electrical signals, we call them voltage gated channels. And when their gates are regulated by some chemicals, right, which bind to the channel proteins, we call them ligand gated channels. So there are two types of channels when we come to the gating, right? One is the voltage gated channel, and the other one is the ligand gated channel, right? Okay, we'll go into a bit of detail of that as well. Right now we are just getting introduced to them. Okay, now what is selective permeability? Selective permeability depends upon diameter of the pore or the channel, the shape of the channel, nature of the electrical charge in that channel, and chemical bonds along its inside surface, right? So all these four things would determine the selective permeability of a channel: diameter, shape, nature of the electrical charge, and chemical bonds along its inside surface. Now, taking the example of the best studied channels are the potassium channels. Now, the potassium channels, they are 1,000 times more permeable to potassium
ions than the sodium ions, right? Now, ironically, potassium ions are slightly larger than the sodium ions, but they do not allow the passage of sodium ions very easily. On the other hand, they allow the passage of potassium ions with a lot of ease, right? Why would that happen? That is where the selectivity characteristic would come in. Now, the potassium channels have a tetrameric structure. It is consisting of four identical protein subunits surrounding a central pore, right? And if I can, here it is. So there are four, it's a tetrameric structure consisting of four identical protein subunits surrounding a central pore, and this is the central pore, this one, right? This is the central pore. Now, what happens is that at the top of the channel pore are pore loops that form a narrow selectivity filter. Now, this pore, the channel pore, is further specified through a selectivity filter. Now, these selectivity filters are comprising of pore loops. Now, these pore loops, they have got the lining of carbonyl oxygens. They have got the lining of carbonyl oxygens. Now, what does these carbonyl oxygens do? Now, the hydrated potassium ions that enter the selectivity filter interact with the carbonyl oxygens. So these are carbonyl oxygens. They will always interact with the hydrated potassium ion that would try to enter the selectivity filter, or that would try to pass through the pore. What it would do is that it would shed most of the bound water molecules. It would take away the water molecules, and it would permit the dehydrated potassium ions to pass through the channel. Okay? Any questions so far? I think it's pretty simple. Okay, good. So we are on the track now. Okay, so so I just told you that the sodium ions, the potassium ions, they are bigger than the sodium ions, right? But they would pass through this pore easily, and the sodium ions, which are smaller in size, most of them won't be allowed to pass through it. So why is it so? That is where the selectivity filter comes in. As I have told you that the selectivity filter has got carbonyl oxygens, and the carbonyl oxygens, they would interact with the hydrated potassium ion, and they would take away the water, and they will allow the potassium ion to pass through. Now, why is the sodium ion effectively excluded by the selectivity filter from passing through the pore? When we come to this, we see that inner surface of this channel are lined with amino acids that are strongly negatively charged. We are talking about the sodium channels, right? We are talking about the sodium channel, so which is 0.3 to 0.5 nanometer in diameter, right? It's a very small one because the sodium is a small ion as compared to potassium. So when the inner surface of this channel is lined with amino acids that are strongly negatively charged, and we all know that sodium is a positively charged ion. So strong negative charges can pull small dehydrated sodium ions into these channels, right? So what these charges do, the negative charge, the strongly negative charged pores, what do they do? That they pull the sodium ions away from the water, right? Because they are negatively charged, the pores inside of the pore is negatively charged, and the sodium itself is positively charged. So the negative charge pulls the positive sodium ion away from the water and permits it to pass through the pore, right? Now, and the sodium ions can diffuse in either direction according to the usual laws of diffusion, right? Okay, but what happens in potassium?
why it does not allow the sodium ion, which is a smaller ion, to pass through the same pore. Here it is. In the potassium ions, the carbonyl oxygens are far too apart. They are far too apart to enable them to interact closely with the smaller sodium ions. Did you understand this? When we were talking about the potassium ions, and the potassium ion we said was a larger ion, it was easily passing through the selectivity filter. Why? Because the pore was of the same size, of course, as it was for the sodium ion, right? But the thing is that the size of the ion, the potassium ion, was bigger, and it could easily interact with the carbonyl oxygens of the selectivity filter. On the other hand, as the size of the sodium was smaller, so when it was combined with water, it was not big enough, it was not large enough to properly interact with the carbonyl oxygens of the selectivity filter, and the sodium ion could not be pulled away from the water and allowed to go into the on the other side of the membrane, right? So that is how the selectivity filter works. Okay, now we come to the gating of the protein. So in selectivity filter, actually you need to emphasize or concentrate on two things. One, that what type of charge is present, one thing, and the other thing is that what are the components of the selectivity filter. In this case, in the case of potassium, it was carbonyl oxygens. And carbonyl oxygens, they had the tendency to to shed the water away from the potassium ions to let them go on the other side of the membrane, right? Okay, now gating. Gating, as I've told you, that it can be of two types, right? Gates can be either intracellular or gates can be extracellular. Here are two examples. Sodium, in the top diagram, we have the example of sodium. Now the sodium, we see that the sodium channel gate is closed, right? Over here. And over here, we see that the sodium channel gate is open, right? Now, when the sodium channel gate is closed, there is no influx of sodium from the outside to the inside. But when the sodium gates are open, there is a clear-cut influx of sodium ions from outside to the inside, right? Coming to the potassium channels. Again, we all know that usually the potassium, it goes from, during the action potential, when the repolarization occurs, it goes from inside to the outside, right? And the repolarization occurs. So over here, the gates are inside, on the intracellular side. So when the gates are closed, there is no outflux of potassium from inside to outside. But when the gates are open, these are potassium ions can easily pass from intracellular to extracellular side, right? Now these gates, these are actually thought to be, most probably, they are thought to be the extensions of the carrier proteins, of the channel proteins, extensions of the channel proteins. So they just form the gates. Now, voltage gating is that when the molecular conformation of the gate or of its chemical bonds responds to the electrical potential across the cell membrane, then we call it voltage gating. When the opening and closing of the gates is dependent upon the change in electrical potential across the cell membrane, then we call that it is a voltage gated channel, right? As we see sodium and potassium ions in depolarization and repolarization. For opening of sodium ions, there is a different potential at which the sodium ions would open. For opening of potassium ions, the potential would be different. The opening of sodium ions will cause depolarization, and the opening of potassium ions will cause repolarization. Okay? So this is voltage gating. Now the chemical gating, the ligand gating.
The protein channel gates are opened by the binding of a chemical substance with the protein, with the channel protein. Now, this causes a conformational or chemical bonding chain in the protein molecule that opens or closes the gate, right? So, here we do not see any role of electrical potential. What we see over here is that binding of a ligand, binding of a chemical with the channel proteins causes a conformational change in the protein, right? Best example would be effect of acetylcholine on acetylcholine gated sodium channels. And where did you study them? Can somebody tell me that? Any idea, any recollection of thoughts? Effect of acetylcholine on acetylcholine gated sodium channels. Where did you study? I can give you a hint. You studied in neuromuscular junction. But on which membrane? Presynaptic or postsynaptic? बेटा, who told you कि जो voltage gated sodium channels होते हैं ये post? Warha Hussain. You are very right, kid. You are very right. Pre नहीं होता, post होता है. Very right. ठीक है, post synaptic. ठीक, किसी ने ऊपर भी लिखा हुआ है. इस्मा नहीं. ठीक है. Thank you, kid. अच्छा, तो ठीक है. ये of course सोडियम गेटेड जो एसिटाइलकोलिन गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही होते हैं. दे आर देयर. और जब भी इन पे एसिटाइलकोलिन आके अटैच होती है तो ये ओपन हो जाते हैं एंड दे लेट द सोडियम इनफ्लक्स टेक प्लेस. ठीक है, ठीक हो गया. तो ये है लाइगेंड गेटिंग और वो थी वोल्टेज गेटिंग. तो ठीक है, बस बाकी हमने कर लिया. अच्छा, अब हम आ जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने कहा कि जो मेजर डिफरेंस है वो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो दो मेजर डिफरेंस बनते हैं. अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दोनों में ही, इन बोथ द केसेस द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो तो वहीं से आ रही है. ठीक. अच्छा, अब अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब इसमें हमें वो ये एक ब्लू कर्व है और एक ये रेड कर्व है और एक ये डॉटेड ब्लैक कर्व है. ठीक है, वी विल टेक देम वन बाय वन. अगर हम ब्लू कलर के इस चार्ट को लें, कर्व को लें, तो ये कर्व हमें ये इट इज जस्ट टेलिंग अस दैट इट्स अ सिंपल डिफ्यूजन कर्व. ठीक है, ये बता रहा है कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस राइजेस सो डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ता रहेगा तो बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनेटली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता रहेगा एंड इट इज एन एंडलेस प्रोसेस. ठीक है, इस पे कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, ये देखो जैसे एक सीधी ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. सो देयर इज नो कैपिंग ऑन इट. इस पे कोई कैप नहीं है, इस पे कोई लिमिट नहीं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड हम जब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कर्व देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक खास लाइन के अराउंड पहुंच के, जिसको कि हम वी मैक्स कहते हैं. ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन that can be achieved through facilitated diffusion for a substance. ठीक है, तो वो आके एक जगह पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, बजाय स्ट्रेट अवे अप जाने के वो एक जगह पे आके कुछ दूर तक वो वैसे ही आती है, ऑलमोस्ट उसी तरह स्ट्रेट अप आती है, लेकिन फिर वो थोड़ा थोड़ा टेपर होना शुरू होती है और फिर वो टोटली हॉरिजॉन्टल हो जाती है. एंड देन डज नॉट मैटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, आप जितनी मर्जी बढ़ाते रहें रेट ऑफ डिफ्यूजन पे चेंज नहीं आएगी बिकॉज इट हैज रीच्ड इट्स वी मैक्स. उसने अपना मैक्सिमम रेट अटेन कर लिया. ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात जो इसमें आती है
जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो है कि सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। एंड दैट इज वाई वो कैरियर प्रोटीन्स का होना ही एक्चुअली इज द रीजन कि ये वी मैक्स इसमें अटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स भी लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, एक बात। फिर नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन दोज कैरियर प्रोटीन्स वो भी लिमिटेड है, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि देयर इज अ सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम जिसमें कि एक दफा सब्सटेंस जो है वो बाइंडिंग साइट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स के साथ अटैच होगा, इट विल गेट अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द कैरियर प्रोटीन, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो दोबारा उससे रिलीज होगा, ठीक है, टू बी रिलीज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, एक साइड से अटैच होगा, दूसरी साइड की तरफ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीन बातें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ अवेलेबल ये जो है हमारी प्रोटीन्स जो हैं, चैनल प्रोटीन्स कह लें इसको आप, चैनल प्रोटीन्स तो नहीं कहना चाहिए इनको, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स का नंबर वो लिमिटेड है, उनमें बाइंडिंग साइट्स लिमिटेड है, ठीक है, और फिर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड जिसमें कि पहले बाइंडिंग होगी और फिर डिटैचमेंट होगी, ठीक है, ये सब कुछ होगा, ठीक है, ओके। So here it is, this is the process, ठीक है। The transported molecule ये जो है ये अटैच होता है यहाँ पे इस बाइंडिंग पॉइंट पे, इस बाइंडिंग साइट पे, ठीक है, कॉन्फर्मेशनल चेंज आती है और ये जो पहले क्लोज था इसका इंट्रासेलुलर एंड जो प्रोटीन का क्लोज था कैरियर प्रोटीन का, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है और ये जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल जो इसमें ट्रांसपोर्ट होना था वो अंदर की तरफ इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका टोटल इसका है हमारा। अच्छा, नर्स पोटेंशियल प्रॉबेबली आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसकी डेफिनेशन हम ज़रूर पढ़ लेते हैं। इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट विच देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर आयन फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर, जबकि कोई नेट फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है। जब हमने डिफ्यूजन की बात की थी ना, तो वहां पे भी जो असल चीज़ है वो नेट डिफ्यूजन है, ठीक है, ये बात याद रखना कि वहां पे भी जो असल चीज़ है ना वो नेट डिफ्यूजन है। क्योंकि ये तो बात याद रख लो कि जब भी डिफ्यूजन होगी तो डिफ्यूजन कभी एक डायरेक्शन में नहीं होती, डिफ्यूजन बेसिकली दोनों डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होती है, एंड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। तो होती है लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में भी इतने पावरफुल काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होंगे, ठीक है। जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस की ज्यादा है उधर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी के मोलेकुलर जिनकी के काइनेटिक एनर्जी बड़ी हाई होगी वो बहुत ज्यादा होंगे, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाने वाले में वो मॉलिक्यूल्स बहुत कम हों। तो इसीलिए जो नेट डिफ्यूजन है दैट वुड ऑलवेज बी फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वैसे ही होगी, ठीक है। अच्छा चलें इसको छोड़िए, इसका हमें नहीं फायदा, हम और कुछ चीजें जो देखते हैं। ऑस्मोसिस, तो एक हो गई डिफ्यूजन, एक हो गई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब एक आ गई ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑस्मोसिस की जब भी हम बात करेंगे तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। इसको जो ज्यादातर डिफाइन किया जाता था प्रीवियसली, वो कहते थे कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ high water concentration to an area of low water concentration, ठीक है।
लेकिन इसकी जो ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन है वो ये है कि बात वही है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, बात वही है, क्योंकि जहां लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इट इज बीइंग रिकमेंडेड बाय बायोकेमिस्ट, बेसिकली ये बायोकेमिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं कि ये डेफिनेशन जो है इट इज मच मोर आइडियल, ठीक है। अच्छा, नाउ ये तो होगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। जैसे ये उसने एग्जांपल दी हुई है ऑस्मोसिस की, ऑन द लेफ्ट साइड इज टोटली वाटर, ऑन द राइट साइड वी हैव NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें ऑन द लेफ्ट साइड द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, यहाँ पे तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। ऑन द राइट साइड द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक है। तो जब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड पे बहुत हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए ये ऑस्मोसिस का एरो जो है वो इधर से इधर बना, ठीक है। ये वो बता रहा है कि अगर हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को, एक तरफ वाटर है बल्कि और एक तरफ ये सॉल्यूशन है, चैम्बर ए में और ये चैम्बर बी में वाटर है, ठीक है, तो हमने अगर रोकना है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम अ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एरिया, तो कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। वो प्रेशर जो कि इस ट्रांसफर को रोक सकता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ थोड़ी सी हम इसकी कर लेते हैं कि सॉरी, जो इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन डिटर्मिनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, मोर मास लेस वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लॉ, K इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, K इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर 2, ये तो हमारा निकला है, फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या, ये जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, ठीक, वो क्या है? वो ये है कि अगर हम एक लें उसका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लें, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, विच इज, अब उसका मोलेकुलर वेट जो है, उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका जो मोलेकुलर वेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। NaCl के मॉलिक्यूल से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मोलेकुलर वेट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा इन अ सॉल्यूशन? ग्लूकोज करेगा या NaCl करेगा? ये मुझे जल्दी से बताओ। NaCl, वाई? Verhausen, Shahryar Khokhar, okay, NaCl, but why? ठीक है, मोर मैस, अच्छा जी, उसका मोर मैस है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कम हो गई, ओके। एक और चीज है जिसको आप जो है ना वो इग्नोर कर रहे हो यहाँ, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसके ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इन अ मोल कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने एक मोल में उसके होते हैं। लेकिन इसकी जब हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl जो है ये डिसोसिएट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द NaCl इट गेट्स डिसोसिएटेड। जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो इसके ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल डबल हो जाते हैं,
ठीक है, तो इट विल एक्सर्ट मोर osmotic pressure, almost double the osmotic pressure of the glucose molecule. यानी कि अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो हमारे पास और 1 मोल ऑफ NaCl हो, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्लूकोज का ऑलमोस्ट हाफ होगा एज कंपेयर टू दी NaCl. क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोराइड 2 पार्टिकल्स बन जाएंगे एंड बोथ आर ऑस्मोटिकली एक्टिव. ठीक है, इसलिए वो डबल, ऑलमोस्ट डबल एक्सर्ट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक, ये बात याद रख लेना है, ये बड़ी जरूरी बात है. अच्छा, अब हम आते हैं कि ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी. ठीक है, क्योंकि ये आगे आपने बेसिकली यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट जाके बनेगा बेसिकली सेकेंडरी उसमें किडनी. ठीक है, यहाँ पे ये आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन हमें आनी चाहिए. Osmolality, concentration of a solution in terms of numbers of particles. ठीक है, the unit called the osmol is used in place of grams. ठीक है, now osmolality का मतलब यह है कि 1 osmol is equal to 1 gram molecular weight of osmotically active solute. ठीक है, now इसका मतलब ये हुआ कि 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज अगर है, विच इज 1 ग्राम मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो इसका इज इक्वल टू 1 ऑस्मोल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, a solution that has 1 osmol of solute dissolved in each kilogram of water is said to have an osmolality of 1 osmol per kilogram. यानी कि अगर किसी एक सोल्यूशन में 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर में अगर हमने एक सोल्यूशन बनाया है और हमने उसमें 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट किसी चीज का डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो उसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होगी? 1 ऑस्मोल पर किलोग्राम. ठीक है, ओके. बस ये असल में आपने बात जो है ना ये समझने वाली है आपने, कि अगर हमने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में हमने 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया है, तो उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी? 1 osmol. It will be having an osmolality of 1 osmol per kilogram. ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है, तो हम जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम बजाय किलोग्राम्स के हम लीटर्स में ले जाते हैं. ठीक है, बाकी वही रहेगा. ठीक है, उसमें हम 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट ही डिसॉल्व करेंगे, लेकिन हम 1 किलोग्राम वाटर में नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल डिसॉल्व दिस 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट, वी विल डिसॉल्व इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 osmol of solute is dissolved in 1 liter of water, it is said to have an osmolarity of 1 osmol per liter. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑस्मोलैरिटी में और ऑस्मोलैलिटी में. अच्छा, अब जो अगर आप फ्रैंकली ये पूछें कि विच टर्म इज मोर क्लोज टू नेचर, तो बेसिकली ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा क्लोज है. लेकिन जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स की, कंपार्टमेंट्स की, ठीक है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं, तो इट इज़ मच ईजियर to determine the volume of the fluid as compared to determining the weight of the fluid in that compartment. इसीलिए हम we go by osmolarity much more often as compared to osmolality. लेकिन हमें for our purposes हमें osmolality और osmolarity का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, और वो यही डिफरेंस है कि जब हम 1 ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो वो 1 ऑस्मोल पर किलोग्राम बन जाता है और ये उसकी ऑस्मोलैलिटी कहलाती है. ठीक है, बट व्हेन वी डिसॉल्व 1 osmol of solute, when we dissolve that in 1 liter of water, तो वो उसकी ऑस्मोलैरिटी बन जाती है और वो कहलाती है 1 osmol per liter. ठीक है, बॉडी में हम इसको यूजुअली मिली ऑस्मोल्स में यूज करते हैं. ठीक है, बॉडी में हम इसको यूजुअली
मिली ऑस्मोल में यूज करते हैं। और हमने ये देखा है कि at normal body temperature 37 that is 37 degrees centigrade, a concentration of 1 osmol per liter will cause 19,300 mmHg osmotic pressure in the solution। ठीक है, ये एक और पूरे ऑस्मोल की बात कर रहे हैं। अगर हम मिली ऑस्मोल की बात करें तो 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 19.3 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जो हमारा इस चैप्टर का असल पर्पज है इसको पढ़ने का, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल व्हाट इज दैट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, हम क्यों इसको एटीपीएस पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कैरियर प्रोटीन है इसमें भी एक कैरियर प्रोटीन यूज होती है। अच्छा, अब एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक और बात याद रख लो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये कैसे डिफरेंस है, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है, ये ऐसे डिफरेंट है कि फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन इसके डिफरेंसेस अगर हम देखें तो उसमें 2-3 बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें हमेशा जो फ्लो ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ जो सब्सटेंस है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि वो विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ऐसे ही होता है, उसमें भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। लेकिन फर्क उसमें क्या आ जाता है कि सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन नहीं होती और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें कैरियर प्रोटीन। एनर्जी दोनों में कोई एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, एनर्जी दोनों में कहां से आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स से आती है। नाउ कमिंग टू द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रादर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर हम बात कर लें प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम बाद में इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें एंड स्पेसिफिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो कैरियर प्रोटीन उसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एक सिमिलैरिटी है वो ये है कि उसमें कैरियर प्रोटीन्स दोनों में इन्वॉल्व। ठीक है, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें जो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस था दैट वाज फ्रॉम एन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, so when that is always against the concentration gradient, so it means कि it would require some external energy, इसको कुछ external energy required हो। ठीक है, now that external energy is provided by ATP and adenosine triphosphate, जिसमें के एनर्जी फॉस्फेट एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं जो कि बड़ी एक हाई किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं व्हेनेवर दे आर ब्रोकन। जब भी इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है तो बड़ी हाई कैलोरिक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब ये इसमें हो क्या रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हमने कहा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल। इसमें आप देखें कि 3 सोडियम जो हैं वो दे आर बीइंग टेकन आउट और 2 पोटेशियम दे आर बीइंग ब्रॉट इन। ठीक है, ये हो रहा है ना बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम देखें वैसे तो सोडियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंट्रासेलुलरली ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन चाहे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन पहले ही ज्यादा है लेकिन अगेंस्ट द और इन साइड जो है वो कम है, लेकिन ये पंप जो है ये हर एक्शन में 3 सोडियम बाहर लेके जाता है। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहा है सोडियम। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम जो है वो बेसिकली
इंट्रासेलुलरली ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली कम होता है। लेकिन यहाँ पे दो पोटेशियम जो है दे आर बीइंग ब्रॉट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि उनको भी पोटेशियम, उनको भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रैवल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एटीपी, और उसको, उस एटीपी को ब्रेक डाउन कौन करता है? ये जो कैरियर प्रोटीन इसमें यूज हो रही है, दिस वन, ये जो कैरियर प्रोटीन इसमें यूज हो रही है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप में, इस कैरियर प्रोटीन में एक, इसकी खास तौर से जो इनसाइड, इसकी जो इनसाइड इंट्रासेलुलर पार्ट है इसका, इसमें एटीपीएज एक्टिविटी है, इसमें एटीपीएज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन क्लीव एटीपी टू रिलीज द एनर्जी एंड कन्वर्ट एटीपी इनटू एडीपी। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है फॉर द कॉन्फर्मेशनल चेंज। कॉन्फर्मेशनल चेंज आती है, ये एनर्जी जो है ये 3 सोडियम बाहर लेके जाती है और 2 पोटेशियम अंदर लेके आती है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो डिफरेंस है वो बेसिकली अगेन एनर्जी का है। प्राइमरी एक्टिव उसमें भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें जाती हैं, उसमें भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें जाती हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? असल जो इसमें डिफरेंस है वो यहाँ है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी आती है एटीपीएस से, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो बेसिकली उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से आती है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने बाय टेकिंग 3 सोडियम आउट प्रोड्यूस किया हुआ है। देखो ना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो हर दफा 3 सोडियम बाहर लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि वो आउटसाइड बहुत बड़ा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नाउ तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यही सोडियम जो ग्रेडियंट है यही काम करता है। ठीक है, नाउ अब इसकी जो कैरियर प्रोटीन है वो भी जाहिर है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इस एस्पेक्ट में होती है कि इसमें जो है वो ये 2 तरह की प्रोटीन्स हो सकती है। एक तो वो जो सोडियम को अंदर लाए, सोडियम को अंदर तो दोनों सूरतों में लाना पड़ेगा। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक को ट्रांसपोर्ट है, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट है। यानी कि सोडियम तो अंदर दोनों सूरतों में आएगा, चाहे को ट्रांसपोर्ट की बात करें चाहे काउंटर ट्रांसपोर्ट की बात करें। सोडियम वुड बी 3 सोडियम, सॉरी, द सोडियम वुड कम विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड द सेल। अब ये कौन सा सोडियम था? ये सोडियम वो था विच हैड बीन टेकन आउट बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase pump against the concentration gradient, यानी कि बाहर इसका सोडियम का एक ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर दिया गया। ठीक है, नाउ दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज गोइंग टू नाउ एक्सर्ट इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, वो अपने इफेक्ट्स एक्सर्ट करेगा और वो सोडियम अंदर आना शुरू करेगा। अब जब वो अंदर आता है, ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन होती है जो कि एक जगह सोडियम को बाइंडिंग देती है और दूसरी जगह पे एक और सब्सटेंस को बाइंडिंग देती है, जिसने या तो सोडियम के साथ सेल के अंदर आना है या सोडियम के अगेंस्ट सेल से बाहर चले जाना है। ठीक है, तो यहां उसने ये देखें, ये ऊपर वाली जो है इसको, जब वो सोडियम, जब वो सब्सटेंस, जब दूसरा सब्सटेंस, सोडियम ने तो अंदर आना ही आना है, काउंटर में भी आना है, को में भी आना है, दोनों ट्रांसपोर्ट्स में आना है, दोनों टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट्स में आना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि बात ये हुई कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक एग्जांपल उसकी हमने ले ली। ठीक है, लेकिन और भी एग्जांपल्स हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। कैल्शियम की एग्जांपल है, उसमें हाइड्रोजन की भी एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और ये सेकेंडरी की भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन बॉडी में बहुत जगहों पे आपको कैल्शियम भी मिलेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एग्जांपल ले लें, जो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद साइटोप्लाज्म से वापस
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फेंका जाता है, वो कैसे फेंका जाता है? दैट इज थ्रू अ कैल्शियम पंप, ठीक है। उसमें भी एटीपीएस ही रिक्वायर्ड होता है, वो भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स भी हैं। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी हमने कहा कि इसकी दो टाइप्स है, एक को ट्रांसपोर्ट है, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो को ट्रांसपोर्ट है उसमें सोडियम विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आता है, लेकिन इसकी वजह से जो एनर्जी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की एनर्जी है, इसको दो तरह से यूज किया जाता है। को ट्रांसपोर्ट में इसको ऐसे यूज किया जाता है कि एक और सब्सटेंस जो इसी कैरियर प्रोटीन्स की एक और बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है, वो भी साथ अंदर आ जाता है, जैसे ये ग्लूकोज की एग्जांपल है, ठीक है। सोडियम भी अंदर आ गया, ग्लूकोज भी अंदर आ गया, ठीक है। और ये एनर्जी कहां से आई है? ये सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से आई है, डायरेक्ट एटीपी से नहीं आई, ठीक है। ये सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से आई है। और ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वैसे बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हुआ था? थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट एटीपीएस की यहां पे एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक। एटीपीएस के जो प्राइमरी एक्सपेंडिचर हुआ था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसके रिजल्ट में जो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया था, कि उसकी एनर्जी है जो अब यूज हो रही है, ठीक है। नाउ द सेम थिंग गोज कि जी ये अब ये सोडियम और कैल्शियम की उसने एग्जांपल दिया है काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें वो दिखा रहा है कि सोडियम तो विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आ रहा है, लेकिन अब कैरियर प्रोटीन थोड़ी सी डिफरेंट है। नाउ दिस कैरियर प्रोटीन इज ऑफरिंग अ बाइंडिंग साइट फॉर सोडियम ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड इट इज ऑफरिंग अ बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सोडियम को अंदर ला रहा है, कैल्शियम को बाहर लेके जा रहा है। सेम गोज फॉर हाइड्रोजन, सोडियम को अंदर लेके आ रहा है और हाइड्रोजन को बाहर लेके जा रहा है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंटर एंड को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है? How does the sodium potassium ATPase pump maintains the sorry, that was a wrong click, ठीक है। Okay, so can somebody tell me कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है वो कैसे सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है? How does it maintain the cell volume? करता क्या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप? 3 सोडियम बाहर ला रहा है, 2 पोटेशियम अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा जो है वो बाहर लेके आ रहा है अपने हर एक्शन के साथ, ठीक है। हर एक्शन के साथ ये एक सोडियम आयन यानी कि एक पॉजिटिव आयन जो है उसको बाहर लेके आ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेंटेन द सेल वॉल्यूम। अगर आप सेल के अंदर देखें तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन अक्सर क्रॉस नहीं करती, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ इफ और वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इसका मतलब है कि प्रोटीन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं, तो व्हाट दे विल डू कि वो बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस को भी अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेंगी। इससे क्या होगा? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी। ऑस्मोसिस को दिमाग में लेके आओ, ठीक है। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बढ़ जाएगी या इनसाइड द सेल बढ़ जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? इट्स द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जो इसमें आउटसाइड द सेल होगा, टू द इनसाइड। तो जब आउटसाइड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल फ्लूइड जो है या वाटर जो है वो इनसाइड द सेल जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ टू बैलेंस आउट दिस और टू दिस इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस को
वापस बैलेंस में लाने के लिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है ये क्या कर रहा है, हर दफा एक पॉजिटिव आयन को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। सो इट इज मेंटेनिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, द पॉजिटिव सोल्यूट्स। तो जब ये पॉजिटिव सोल्यूट्स को मेंटेन कर रहा है, उनके नंबर को मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट विल नॉट अलाउ, हाँ मैं बेटा तजीम फातिमा डेफिनेटली आई कैन टेल यू दिस। मैंने आपको ये कहा कि जो आम तौर पे जो एक सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेल से बाहर नहीं आ सकती, और प्रोटीन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। नाउ इफ द प्रोटीन्स आर negatively charged, what they will do is that they will attract more positive ions to them, यानी कि वो पॉजिटिव आयंस को बाहर नहीं जाने देती हैं और पॉजिटिव आयंस को अपने साथ होल्ड करके रखती हैं। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड द सेल। करेगा ना? एग्रीड? ओके, ठीक है, बिल्कुल इट मेक्स सेंस कि यस करेगा। अब जब नंबर ऑफ सोल्यूट्स अंदर बढ़ जाएंगे तो ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि वाटर किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इनसाइड नंबर ऑफ सोल्यूट्स बढ़ गए हैं और बाहर जो है नंबर ऑफ सोल्यूट्स कम और कम रह गए हैं, तो बाहर से पानी जो है वो अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। And if the water starts flowing from the outside the cell to the inside of the cell, so what will happen? More and more water will start flowing in, and it will increase the volume of the cell. And if we do not stop it, it can even burst the cell. तो ये इस वॉल्यूम को, सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का जो रोल है वो है ही यही बेसिकली कि ये एक प्लस आयन को, सोडियम आयन को अपने हर एक्शन के साथ बाहर फेंक रहा है, यानी कि अंदर से एक सोडियम आयन को, एक पॉजिटिव आयन को कम कर रहा है। सो इट इज मेंटेनिंग द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट मेंटेन्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बड़ा और छोटा सा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। It's not that which is going to, well, so far nobody has been able to make such an experiment in human beings. Outside तो किया जा सकता है शायद। वो ये है कि अगर ATPase पंप को उल्टा, इसको अगर हम ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है अगर हम ये इतना बढ़ जाए, हमने कहा कि ATPase पंप जो है वो 3 सोडियम बाहर लेके जाता है, और ये सोडियम ये ग्रेडियंट इतना ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, कि ये इस पंप को उल्टा चला दे, तो क्या होगा? ये पंप बेसिकली क्या कर रहा है? आई नो दैट द टाइम इज अप। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करना है तुमने? आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव अ नेक्स्ट लेक्चर। 1 बजे तो आपकी टाइमिंग खत्म नहीं हो जाती? चलो एनीवे, आई विल टेक जस्ट 1 मोर मिनट, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो, अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का बार इतना ज्यादा हो जाए कि ये ओवरकम कर जाए एटीपीएस की पावर को, ठीक है, यानी कि ये वापस आना शुरू हो जाए इतने पोटेंशियल के साथ, इतने पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल के साथ कि ये एटीपीएस को, यानी कि ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, इंस्टेड ऑफ कि इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो रूटीन फंक्शन है, उसमें एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी पंप को, इसी की एफिशिएंसी को उल्टा दें तो ये एटीपी क्रिएट भी कर सकता है, बट दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस एंड विच मेक्स सेंस। अगर
एटीपी की यूटिलाइजेशन से सोडियम को बाहर ले जाके हम एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो इस पंप को रिवर्स चलाना शुरू कर दे, तो जहां पे हम देखते हैं कि एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एडीपी, वहां पे यही जो एडीपी है इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एटीपी, बट दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर जो है ये तो हो गया खत्म। ठीक है, नाउ आई डोंट नो कि नेक्स्ट लेक्चर आपका जो जब भी है फिजियोलॉजी का वो मेरे साथ होगा या डॉक्टर रफी के साथ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, आई नो योर टाइम इज ओवर, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।